بھی قبول کرے المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات بر محمد وآلہ سامعین کرام اور حضرت مجلس اعزا، بزرگان قوم و ملت، محبان اہل بیت اور حاضرین ذوال احترام، قبل اس کے کہ اس مختصر سی تقریر کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا میرے قریب تشریف لے آئیں اور آپ حضرات کی جگہ خالی ہے اس کو پور کر دیں اور اپنی حاضری درج کرا دیں، اگر آپ قریب آ جائیں کہ بلند ترین نعرہ سلمان کا سہارا دیں۔ سامعین احترام، برادران ایمانی اور بے اندازہ جذبہ ایمان رکھنے والے شیعان حیدر کرار، اپنے قدموں کو زحمت دے کر آمادگی اور تیاری کے ساتھ اس دربار میں آتے کہ جس دربار کی شرط یہ ہے اور شان یہ ہے، جس کو دربار حسین کہا جاتا ہے، جس کو عزاخانہ حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اس دروازے کی شان یہ ہے، اس دربار کی شان یہ ہے کہ جو جتنا چھوٹا بن کر آتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بن کر جاتا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا مجھے، چونکہ ایک تقریر کے لیے مجھے بھی جانا ہے، مجلس ختم کرنے کے بعد بس تھوڑی دیر میرے ہم سفر ہو جائیں انشاءاللہ۔ منزل بہت خوبصورت ہوگی، اس سفر میں آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے، نتیجہ بہت خوبصورت ہوگا، اور جملوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے، ہر وہ منزل خوبصورت ہوتی ہے جس پہ علی جیسا امام نظر آتا ہے، ہر وہ منزل خوبصورت ہے جس پر علی جیسے امام سے ملاقات ہو۔ اسی لیے تو مومن مرنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے جاگتے میں علی نہیں ملتا ہے، جب مر جاتے ہیں تو علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ خدا سلامت رکھے جی، شاد و آباد رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت جلد میں دامن تقریر سمیٹنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ میرے خطاب سے واقف ہیں، میں آپ کی سماعتوں سے، آپ کی داد و تحسین سے اور آپ کی داد کے انداز سے بخوبی واقف ہوں۔ کائنات میں وہی گنگا ہے جو علی کے نام پہ نہ بولے، کائنات میں ہوتا ہی وہ گنگا ہے جو علی کے نام پہ نہ بولے۔ اور جملہ سنبھالیے گا، پڑھنا میرے اختیار میں ہے، سننا آپ کی ذمہ داری ہے، داد و تحسین دینا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ بے غیرت کہتے ہی اسے ہے جسے علی سمجھ میں نہ آئے، بڑی توجہ، بے غیرت کہتے ہی اسے ہے جسے علی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ بستی بڑی قدیم بستی ہے، یہ بستی نامچن بستی ہے، اور ہر وہ بستی محترم ہوتی ہے جہاں نام علی کا لیا جائے، پرچم حسین کا اٹھایا جائے، غازی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں جب کائنات کا زندہ یزید مجلس حسین نہ روک سکا، آج دیکھ لیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں بستی ایسی ہے، پڑوسی ایسی ہے، قرب جوار میں لوگ ایسے رہتے ہیں، ذرا مجلس خود ہی نہ پڑھیے گا، پناہ پناہ کا ذکر نہ کریے گا۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کسی کے نجس نام سے مجلس حسین کی طہارت کو پامال کیا جائے۔ اگر اہل بیت کے جملہ سنبھالیے گا مولا کے آخری محب تک، ہماری سیرت، ہمارا طریقہ، ہماری طرز یہ ہونا چاہیے
आओ मजलिस हुसैन में बैठ के तो देखो मजलिस हुसैन में मिलता क्या है। फतवा लगाना आसान है, आजादार बनना मुश्किल है। सलवात बड़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो। फतवा लगाना बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ। जज़ाकल्लाह अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी शाद आबाद रहे, जी शाद आबाद रहे, सलामत रखे। फतवा लगाना आसान है लेकिन आजादार बनना बहुत मुश्किल है। अब मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, नतीजा दे रहा हूँ, किसी लायक को दुआओं से नवाज दीजिएगा। नौजवानों से अलग खुसूस तवज्जो का तलबगार हूँ, इसलिए कि मसला बहुत सेंसिटिव है, मरहला बहुत हसास है। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ इस मकाम पर। आज तक आजादारी को लोगों ने समझाई कहाँ, मजलिस हुसैन का इरफान ही कहाँ हासिल हुआ, बरशज़ा के तकद्दुस का लिहाज ही कहाँ रखा गया। अगर आजादार बन जाते, अगर मातमदार बन जाते तो अल्लाह का नबी सरदार अंबिया बशीर नज़ीर सराज मुनीर तानाए सबुल मौलाए कुल खत्म रसूल पैगंबर अव्वल कमाल अव्वल जमाल अव्वल नूर अव्वल मखलूक अव्वल सैयदुल अंबिया ये ऐलान न करता लब इस्तमन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलकन्नाहु नार। अल्लाह के नबी ने, मुसलमानों के नबी ने 1400 साल पहले कहा था, अगर सारी कायनात अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, अगर सारी कायनात अली की विलायत पर जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। सलवात बड़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर सारी कायनात, बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ आइएगा, बड़ी तवज्जो बाबा से बोला कि आखिरी मिनट तक पूरी जिम्मेदारी के साथ जिए शादो आबाद रहे। और जो हाथ फजाइले अहले बैत सुनकर, फजाइले अली सुनकर हवा में बुलंद होते हैं, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, किसी बेगैरत का मोहताज न करे। हाथ होता ही उसका बुलंद है जिसको अली खैरात दे रहा हो। जिसको अली खैरात न दे उसके हाथ को इबादत में भी आजाद नहीं होते। खैरात जिसे मिलती है, क्योंकि खैरात का आपके दरवाजे में भिखारी आते होंगे, फकीर आते होंगे, और फकीर का मकाम खालिक नहजुल बलागा हजरत अमीर कायनात ने बताया, जब भी कोई तुमसे अल्लाह के नाम पे सवाल करे, उसके सवाल करते ही तुम उसके दामन को भर दो, इसलिए कि सवाल करने वाले के हाथ में अल्लाह का हाथ होता है। मेरे मौला ने कहा हाथ आजाद नहीं होते। फकीरी का उसूल ये है, फकीरी का उसूल ये है, हम दरे आले मोहम्मद के फकीर हैं। हमारी किस्मत है कि परवरदिगार हमें सारी जिंदगी आखिरी सांस तक इसी दरवाजे का भिखारी बना के रखना, फकीर बना के रखना। क्योंकि इस दरवाजे का भिखारी जो बने, कोई सलमान बना, कोई मिज़म बना, कोई बूजर बना, कोई मिफ्ताह बना, और इस दरवाजे की शान ये रही कि जो भी आया उसे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वो संभाल नहीं पाया, बेजर आया, बूजर बना दिया। क्योंकि इनके दरवाजे की शान, बस जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। आयतें मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। कहानी नहीं कुरान, किस्सा नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान, रिवायत नहीं कुरान, खुतबा नहीं कुरान, हदीस नहीं कुरान। इसलिए कि कुरान की शान यह है जनाब, हदीस के बाद, रिवायत के बाद, खुतबे के बाद, हदीस पे तो डिबेट हो सकती है। नहीं, आप मेरे साथ नहीं आए इस मंजिल में, मैं बात को पहुंचा नहीं पाया। कहानी नहीं कुरान, क्योंकि हदीस पे तो डिबेट हो सकती है, खुतबे पर तो डिबेट हो सकती है, कुरान को किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की शान को जरा गौर करो, मुलाहिजा फरमाओ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वला रत्ब वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान कहता है इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये वो किताब है जिसे हमने नाज़िल किया। अब जरा मुलाहिजा फरमाएं, इसकी तहारत का मेयार कुरान ने बताया। सूरह मुबारक वाक़िया में ऐलान हुआ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह कहता है इसको वही छूते हैं जो पाक होते हैं, इसको वही हाथ लगाते हैं
जो पाक होते हैं, आपके अकीदे का जुमला पढ़ रहा हूँ, संभालिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। यानी खामोश रहने वाले कुरान की, अलमारी में रहने वाले कुरान की, हाथों में आने वाले कुरान की, तबलीग करने वाले कुरान की, आयतें समेटने वाले कुरान की, मफहूम समेटने वाले कुरान की। अल्लाह ने शान ये बताई, इसको वही छूते हैं, इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक होते हैं। तो अल्लाह ने मिजाज बता दिया, अगर कोई अलम न छुए, अलम की मुखालिफत करे, ताज़िये को बिदअत कहे, कुरान तो पहले ही कह चुका, वही छुएगा जो नस्ली पाक होगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वही छुएगा जो नस्ली पाक होगा, कहानी नहीं। बाबा जी बोला जी, शादवाबाद रहे अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाकया, सिर्फ एक मुजजा, एक मुझसे की मैंने इजाजत मांगी है, बहुत जल्दी दामन तकलीफ समेटूंगा। माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आप सुन रहे हैं। मेयार ही ये होना चाहिए, वही कुरान, कहानी नहीं कुरान, किस्सा नहीं कुरान का। जनाब क्यों नहीं? क्या इसलिए कि कमाल हो गया। क्या जनाब कमाल क्या हो गया? मैं इस सरजमीन पे पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सुने, हम पे फतवा लगता है, ये तो अली के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं, ये तो अली के अलावा कुछ जानते ही नहीं। अरे नालायक है तू, बेगैरत है तू, कमीना है तू, बदकिरदार है तू। जब तक अली को नहीं समझेगा, ना खुदा समझ में आएगा, ना मोहम्मद समझ में आएगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली को समझने के लिए किरदार की शर्त है, कैरेक्टर की शर्त है। जी सलामत रखे मोहम्मद। बड़ी तवज्जो। अली को जिसने अली को समझ लिया, समझो उसने नबी को समझ लिया, उसने खुदा को समझ लिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का नबी कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली मा अरफका इल्लल्लाहु व अना। ऐ अली, तेरी हकीकत को, तेरी हकीकत को, तेरे मकाम को, कमा आपका जो जानने का हक है, या तो मैंने जाना या मेरे खुदा ने जाना। इसका मतलब ये है, अली को समझना इतना आसान, बोलिए जोर से, इतना आसान जी है। खुदा सलामत रखे में करे परवरदिगार। अल्लाह ने मुश्किलात के सदक़े में परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। तेरे तुझे समझने के लिए या तो मैंने जाना या मेरे खुदा ने जाना। अब अगर कोई अली को न समझे तो परेशान ना होना। नबी ने कह दिया, अली की शान ये है, इसको समझने के लिए या तो रसूल जैसी जात होना चाहिए या अल्लाह जैसा मकाम होना चाहिए। हर कोई समझ सकता, हर कोई समझ सकता। कहानी नहीं, कुरान का कमाल क्या हुआ का जनाब, कमाल ये है कुरान का, भेजने वाला अल्लाह है। अब आप मेरे साथ आएंगे इंशाअल्लाह। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्राइल है। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्राइल है। बताने वाले मोहम्मद हैं और बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। कुरान न किसी सहाबी से बचा, न किसी पीर से बचा, न किसी मुरीद से बचा, न किसी मजार वाले से बचा। कुरान वही बचाएगा जो पैदा होते ही चारों किताबें पढ़े। कुरान वो नहीं बचाएगा, वो नहीं बचाएगा जिसे सारी जिंदगी सूरह बकरा याद न हुआ। मैं कह के गुजर रहा हूँ, कुरान को नहीं बचाएगा, वो कुरान का मुबल्लिग नहीं बनेगा, वो कुरान की तबलीग नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं मजलिस हुसैन में आओ तो सही। अगर हम किसी और का जिक्र करें तो हमारा गिरेबान पकड़ ले। मजलिस हुसैन तहारत का मकाम है, यहाँ निजासतों का जिक्र नहीं होता, यहाँ बेगैरतों का जिक्र नहीं होता। मजलिस हुसैन कैरेक्टर क्रिएशन का मकाम है, किरदार बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। अगर किरदार बिगाड़ना है तो सकीफा में जाओ, किरदार बनाना है तो गदीर के उजाले में आना पड़ेगा। मजलिस हुसैन का मकाम क्या है, मैं नतीजा पढ़ के निकल रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ इस मकाम पर। हम तो ऐलान करते हैं मजलिस, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, क्या मकाम है। आखिरी लम्हात में आ रही मजलिस, मुतवज्जो रहिएगा। मजलिस करने की आदत डालिए, आइए मजलिस हुसैन में,
हम आपको बताएंगे मजलिस हुसैन है क्या, बैठ के देखिए तो सही, सुनिए तो सही, परखिए तो सही, क्योंकि परखने के बाद ही फैसला होता है दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, अच्छा कौन है बुरा कौन है। तमीज़ हलाल और हराम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। पहले रिसर्च को करो और आने के बाद देखो मजलिस हुसैन क्या है। तो हम तो ये ऐलान करते हैं, मस्जिद में जाइए, आजादारों सुनना, नतीजा पढ़ रहा हूं, मजलिस में जाइए आजा खाने के रास्ते से। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, बड़ी बड़ी तवज्जो। मजलिस में जाइए आजा खाने के रास्ते से। का क्यों? का ताकि नमाजी कहलाएं, इब्ने मुलजिम ना कहलाएं। मैं बहुत बड़ी बात करके गुजर रहा हूँ। मस्जिद में जाइए आजा खाने के रास्ते से, ताकि नमाजी कहलाएं, इब्ने मुलजिम न कहलाएं। जो आजा खाने के बगैर गया वो लानती बना। मैं हकीकत पढ़ने का आदमी, मेरे मिजाज से वाकिफ है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, मवद्दत रखने वाला, प्यार करने वाला दुनिया में भी नेक नाम होता है और आखिरत की निजात भी हासिल कर लेता है। क्या जनाब कैसे? समझ में नहीं आया। मोहब्बत अहले बैत से दुनिया में भी नेक नामी, आखिरत की निजात भी मिल गई। क्या समझने के लिए हमारे साथ आओ। सबूत के लिए करबला गवाह है। का कैसे? का जो हुसैन के दामन से करबला के रेतीले मैदान में नबी का मोहतरम नवासा, फातिमा का नूरे नजर, अली का लफ्ज़ जिगर, उम्मत का इमाम, कायनात का रहबर, सुल्तान करबला इमाम हुसैन चटियल मैदान में अकेले खड़े थे। क्या हुआ? क्या जो हुसैन के दामन से लिपट गया करबला के मैदान में, कोई घुर बन के उठा, कोई हबीब बन के उठा, कोई मुस्लिम इब्ने औसजा बना, कोई अब्बास बना, कोई अकबर बना। हकीकत ना हो तो जुमले वापस करिएगा। मजलिस हुसैन क्या है? कोई अकबर बन के उठा, कोई अब्बास बन के उठा, कोई असगर बन के उठा, कोई हबीब बना, कोई मुस्लिम इब्ने औसजा बना, कोई कासिम बना, और जिसने ठुकराया कोई उमर साथ बना, कोई कसर साथ बना, कोई वलीद बना, कोई मरवान बना, कोई मरवान बना, कोई यजीद बना, कोई हसीन बिन अमीर बना, कोई शिमर बिन ज़िलजौशन बना, कोई खूली बना, कोई कसर साथ बना। फैसला तो हो गया मुसलमानों। अब अगर कोई तुम्हारी मजलिस में ना आए, परेशान मत होना। करबला के मैदान में अल्लाह ने फैसला कर दिया कि परवरदिगार क्या करेगा। क्या मेरा काम है बांटना, मेरा काम है देना, मेरा काम है अता करना। क्या करेगा? क्या हुसैन मेरा, करबला मेरी, जमीन मेरी, सजदा मेरा, नबी मेरा, नवासा मेरा, नमाज मेरी, लेकिन फैसला मैं करूंगा। क्या तू क्या फैसला करेगा? क्या निगाहें दौड़ा कर देखो, हुसैन अकेला था। जो कदमों से लिपटे उन्हें भी दूंगा। नहीं नहीं, अभी आप मेरे साथ नहीं आए, थोड़ी सी मदद और करिए ताकि मंजिल आसान हो। अल्लाह ने फैसला किया हुसैन के जो कदमों से लिपटे उन्हें भी दूंगा, और जिन्होंने ठुकराया नहीं नहीं मेरे साथ आ, उन्हें भी दूंगा। क्या परवरदिगार देगा? क्या कयामत तक के लिए मैं दे दूंगा। तकदीर बनेगी, किस्मत बनेगी, मियार बनेगा। क्या नजर दौड़ा के देख, जो हुसैन के कदमों से लिपटेंगे उन्हें सलवात दे दूंगा। हाय हाय हाय, जो हुसैन के कदमों से लिपटेंगे उन्हें सलवात दे दूंगा, जो टकराएंगे उन्हें लानत दे दूंगा। जो लिपटेंगे उन्हें सलवात दे दूंगा, जो ठुकराएंगे, जो टकराएंगे, जो इनहराफ करेंगे उन्हें लानत दे दूंगा। फैसला तो अल्लाह ने कर दिया। दोनों का अपने अल्फाज में पढ़ना, जिम्मेदारी आप उठाइएगा। अल्लाह ने करबला के मैदान में दोनों का अकाउंट खोल दिया। नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं आए, बहुत आसान करके पढ़ रहा हूं। दोनों का अकाउंट खोल दिया, लानत वालों का भी खोला, सलावात वालों का भी खोला। सब पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, और अकाउंट की शान ये है, अकाउंट नंबर हाथ में लो, चाहे जापान से पैसा डालो, चाहे ईरान से पैसा डालो, चाहे लबनान से पैसा डालो, चाहे इराक से पैसा डालो। क्या जनाब कभी खता नहीं होगी। अकाउंट जिसका है, अकाउंट जिसका है, कहीं से भी डाले, कोई भी डाले,
किस हाल में भी डाले पहुंचेगा वही जिसके हिस्से में है। अब हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अपने बाप का असली बेटा होगा, माँ का शरीफ बेटा होगा, जो नेक होगा, कहीं से भी सलवार पड़े मैं और खुद के पढ़ दूं और खुद के पढ़ दूं, हालांकि हक है, बयान करना मेरा हक है। मस्जिद किसी की भी हो, नमाज में जितनी सलवार पढ़ोगे जाएगी उसी के हिस्से में जिसके हिस्से में अल्लाह ने लिखी है। और लानत कहीं भी पढ़ी जाए जाएगी उसी के हिस्से में जिसका अल्लाह ने करबला में अकाउंट खोल दिया। क्या नस्लें देखते चले जाओ, सलवात पढ़ते चले जाओ, सलवात पढ़े ये मत बस मेरे साथ आइए बहुत जल्दी, खुदा सलामत रखे। जी शादो आबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अकाउंट खोला, अल्लाह ने अकाउंट खोला है, खोला उसने, जिम्मेदारी हमें दी। जितना डाल सकते हो, जितना ट्रांसफर कर सकते हो करते रहो, ये अकाउंट बंद नहीं होता। जमला पढ़ो, इसकी कनेक्टिविटी जाती नहीं, सर्वर डाउन नहीं होता, क्योंकि इसको चलाने वाले हैं हम। नमाज में पढ़ोगे तो भी हुसैन के पास, नमाज के बाद पढ़ोगे तो भी हुसैन के हिस्से में, मजलिस में पढ़ोगे तो भी हुसैन के हिस्से में, करबला में पढ़ोगे तो भी हुसैन के हिस्से में। नेकी जहां भी होगी हुसैन के हिस्से में जाएगी, क्योंकि नेकियों पे बादशाहत है हुसैन की, निजासतों पे बादशाहत है यजीद की। जहां भी निजासत होगी वहां यजीद का घर है, वहां यजीद का घर है। हर पाक जगह पे हुसैन का कब्जा। यही तो वजह है जिनके दिल पाक है उनमें अलम भी है, ताजिया भी है, और जिनके दिल नजिस, जिनका खमीर नजिस, जिनका हसब नजिस, जिनका नसब नजिस, जब कल अली के ना हुए तो आज अली के कैसे हो सकते हैं? लोग कहते हैं नबी को नहीं पढ़ते, नबी को नहीं मानते। मैं बहुत बड़ा जुमला पढ़ रहा हूँ, इस साल का मेरा तारीखी जुमला है, दुआ से नवाज दीजिएगा। कौन कहता है जहानाबाद की सरजमीन पे मैं ये अपना जुमला पढ़ के जा रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी बढ़ा रहा हूँ, नतीजा आपको देना है दादो तहसीन की शक्ल में। मैं अपना जुमला पढ़ के जा रहा हूँ, मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा सुनो मुसलमानों, जहानाबाद के मुसलमानों सुनो, नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो, हमें वो अली चाहिए ही नहीं जो नबी को छोड़ के मिले। नहीं, ये इस बार का मेरा तारीखी जुमला है। हमें शियों को वो अली चाहिए ही नहीं जो नबी को छोड़ के मिले। हमें तो वो अली चाहिए जिसको लेने भी नबी चाहे, जिसको जबान भी नबी चुसाए, जिसको पाले भी नबी, जिसको खिलाए भी नबी, और पढ़ो जुमला, जिसको कभी दोष में बिठाए, जिसको कभी परवान चढ़ाए, कभी लुकमे खिलाए, कभी जबान चुसाए। भाई लोग कहते हैं नहीं, हर वक्त अली अली करते हैं, तो ये फतवा पहले नबी पे लगाओ, नबी पे लगाओ कि हर वक्त अली ही को आगोश में क्यों लिए रहे। शेर पढ़ो, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, फातिमा बिनते असद, कैसी दौलत। और सुनो, नबी को नहीं पढ़ते ना, मकान सुनो, नबूवत से इमामत का मैं साबित कर रहा हूँ। कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए। कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए। ईमा की जवानी को ज़ईफ़ी न समझना, ईमा की जवानी को ज़ईफ़ी न समझना, अली के इश्क में बूढ़े जवान हो जाते हैं। मैं कह के गुजर रहा हूँ, अली के इश्क में बूढ़े जवान हो जाते हैं, और अली के बख्श में जवान बूढ़े हो जाते हैं। अली की दुश्मनी, अली साहब, अली की दुश्मनी चेहरों की रौनक छीन लेती है, स्मार्टनेस गायब हो जाती है। अगर यकीन ना आए
तो कायनात में नजरें दौड़ा के देखो, किसी की आंख गायब मिलेगी, किसी का कान गायब मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अली की दुश्मन, अली की दुश्मन किस मकाम तक ले जाती है? अरबाब आज़म में आ गया आखिरी लम्हात की तरफ। अली की दुश्मनी चेहरा बिगाड़ देती है, चेहरा बिगाड़ देती है। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता। हालांकि मेरा मिजाज नहीं है, आज बात आगे की पढ़ रहा हूँ। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, ये आग लगाते हैं और जलता है मुनाफिक अंदर से, जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, ये आग लगाते हैं जरा और तरह की, जरा और तरह की। मजलिस में जाइए मस्जिद में आजा खाने के रास्ते से। आखिरी बात पढ़ के मैं बस रब्ते मसाइब देना चाहता हूँ। मकाम क्या है अहले बैत का, बस वो सुन ले चंद लफ्जों में। तारीख का वो अजीम नाम, तारीख का वो बड़ा नाम, आलिम शख्सियत, आरिफ शख्सियत। बहुत फतवे लगते हैं ना, शिया ऐसे, शिया वैसे, शियों के खाना मत खाना, शियों के पानी मत पीना। अगर मेरी बात हकीकत ना हो तो वापस कर देना, अगर कोई नाराज हो जाए तो मुझे माफ कर दे, हकीकत बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। शियों पे बड़े फतवे लगते हैं। फतवा लगना इस बात की दलील है कि जो कामयाब होता है उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। ये हकीकत है, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। और शिया इसलिए कामयाब है क्योंकि उसने जितनों को माना वो सब कामयाब। न इबादत में पीछे, न किरदार में पीछे, न अंदाज में पीछे। भाई कमाल हो गया, शियों ने ऐसे को इमाम माना जिसका नाम ही अली है, नाम ही अली है। लक़ब चुरा के चिपकाना और है, वली बन के पैदा होना और है। चिपकाया हुआ मालिक के बराबर नहीं हो सकता। लूटने वाला और है, और घर लुटा के गरीबों को पालने वाला और है। रात की तारीकी में दोस्त पे बोरियां डालकर गरीबों के घर राशन पहुंचाने वाला और है। यतीमों का माल छीनने वाला और है, बेवाओं को परेशान करने वाला और है। जमला संभालिएगा, यहूदी के बाप में मजदूरी करके मजदूरी से मुसलमानों को पालने वाला और है, और यहूदियों से हाथ मिलाकर इस्लाम को बर्बाद करने वाला। सीरत आज भी देख ले, मुल्कों पे नजर डाले और नजर डाल के देखे। बस मजलिस में खत्म कर रहा हूँ। मेयार क्या अली वाले का आया, एक तारीख का मुनाजरा पढ़ के जा रहा हूँ, सिर्फ 2 लफ्जों में सुन लेना, तवज्जो रखना। तारीख मुनाजरा फतवे लगते रहते हैं ना। मौलाना इस्माइल अल्लाह मकाम, एक जबरदस्त नाम तारीख का, एक जय्यद आलिम, मजबूत आलिम। मुरीद बैठे हुए हैं और मुरीदों से बात कर रहे हैं। आ गया एक मंचला दुश्मन शियों का, और आया मौलाना इस्माइल अल्लाह मकाम के पास। एक वहाबी और शिया का तारीखी मुनाजरा पढ़ के जा रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, वक्त बहुत कम है। आखिरी लफ्ज है। इस्माइल साहब से आके कहता है, हुजूर एक सवाल है। इस्माइल साहब ने देखा कि मुरीद बैठे हैं चारों तरफ। उन्होंने कहा, बार बार मना किया इशारे से, मुरीदों के सामने ना पूछे। क्या कहा उन्हीं साहब, मुरीदों के सामने ना पूछे। बार बार मना किया, वो इसरार करता रहा। नहीं जी नहीं, मतलब बताइए। जो सोच है, जो ट्रेड है, उस पर मैं अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। कहा नहीं जी नहीं, मतलब बताएं। जब ज्यादा इसरार किया तो इस्माइल साहब एक मर्तबा तड़प के कहने लगे, फतवा बता। उस बेगैरत ने कहा, मेरा फतवा है कुत्ते का जूता पी लो। अभी भी आप खामोश रहे। वो कहता है कुत्ते का जूता पी लो,
شیعہ کا جھوٹا نبی۔ اسماعیل صاحب نے چہرہ دیکھا اور خدا کی قسم تاریخی جواب دیا۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں بات تیری بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرے ساتھ۔ میں آخری میراث پہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کہا میرا فتویٰ ہے، میں نے فتویٰ دیا اپنی مسجد سے کہ کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہ پیو۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں بات تیری بالکل ٹھیک ہے، فتویٰ تیرا بالکل ٹھیک ہے، بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے ملتا ہو۔ نہیں، بات تیری بالکل ٹھیک ہے، بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے ملتا ہو۔ چہرے کا رنگ اترا، پڑھ کے جا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ اسماعیل صاحب نے واضح کر دیا کتا کتے کے ساتھ کھائے گا، شیعہ شیعہ کے ساتھ۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تاریخی جواب۔ دشمنی کا معیار کیا؟ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کتے کا جھوٹا، کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہ پیو۔ سب سے پہلے تجھے اپنے نبی سے یہ پوچھنا چاہیے، کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب کے گھر کھا کے پی کے جو پروان چڑھے وہ ہوتا ہے نبی۔ کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام ہے ابو طالب، اور اس لفظ شیعہ کے اندر اگر تاثیر نہ ہوتی، اگر اثر نہ ہوتا، پوری ذمہ داری سے پڑھ کے جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے میں قرآن کھول کے رکھوں گا، تفسیر کھول کے رکھوں گا۔ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ اپنا پتہ، اپنا نشان، اپنا ذکر، اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں بھائی شیعہ کا مقام یہ ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وہ میرا شیعہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا قرآن مجید میں کیا کہا؟ جناب ابراہیم کو اپنا شیعہ بتایا۔ شیعہ جسے معرفت ہو، شیعہ جس کے پاس عقیدت ہو، شیعہ جو کسی کو زحمت نہ دے، شیعہ جو پڑوسی کو پریشان نہ کرے، شیعہ جو غریبوں کا حق نہ مارے، شیعہ جو کسی کی عزت پہ وار نہ کرے، شیعہ جو کسی کا گریبان نہ پکڑے، شیعہ جو کسی کی غیبت نہ کرے، شیعہ جو کسی کا حق نہ مارے، شیعہ جو دیوار بڑھا کے نہ بنائے، شیعہ جو مسجد کا نہ کھائے، شیعہ جو امام باڑہ نہ کھائے، شیعہ جو متولی بن کے اپنی بلڈنگ نہ کھڑی کرے۔ یعنی شیعہ کے معنی اللہ نے بتا دیے۔ شیعہ وہ ہوگا ہر حال میں ہم سے بھی ڈرے گا، اہل بیت سے بھی ڈرے گا، اور کام کو کرے گا جو اہل بیت کو بھی پسند ہو اور اللہ کو بھی پسند ہو۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ انہ من شیعۃ، وہ ہمارے شیعہ۔ شیعہ کا مقام جانتے ہیں؟ اللہ نے اگر کسی نبی کو کہا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں تو شیعہ کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ آج زمانہ پیچھے لگ جائے اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن ہماری مجلسوں کی گارنٹی ہے، ہم اپنی مجلسوں میں کسی کا ذکر نہیں کرتے اہل بیت کے تذکرے کے علاوہ، ان کا تذکرہ کم نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا جس نے غریبوں کو لقمے کھلا کے پالا، جس نے یتیموں کو اپنی آغوش میں کھلایا، جس علم میں بیماروں کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جس نے امت پر اپنی مزدوری کے قربان کر دی، جس نے امت کے لیے سارے زخم سہے، پانی پلایا، کھانا کھلایا، لقمے کھلا کے پالا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے اس علی کے جانے کے بعد اس امت نے علی کی اولاد کو بھوکا اور پیاسا کر پایا، بھوکا اور پیاسا کر پایا۔ ارباب ازا، یہ کائنات اہل بیت کا صدقہ ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوا، پانی جن کے صدقے میں پیدا ہوا، زمین جن کے صدقے میں پیدا کیا تھا، اس زمین پر انہی کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی گئی، انہی کے پیروں میں ہتھیلیاں ڈالی گئی، انہی کے کمر میں کپڑا ڈالا گیا، گلے میں ہاتھ ڈالا۔ صرف ایک روایت اور مجلس تمام سن۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی کو سلام کرے، تمہاری جوانی تمہارے والدین کی
دینی اور بڑھانے کا سہارا بنے. خدا کرے جناب علی پر السلام کے سبقے میں سب کا نام سلام. اللہ سب کو میرے دراز عطا کرے. لیکن کیا ہو اس غریب ماں کے بارے میں کہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی جسے پیار سے پال رہی، جس نے اس کے یسوع سنبھالی، جس نے جان سے زیادہ عزیز رکھا، وہی 18 سال کا کڑیا جوان جب اپنے بابا کی خدمت پہنچا، بابا مجھے اجازت کار ساتھ. اور باب اعظم ایک باپ کے لیے بڑا سخت مقام تھا. بیٹا کوئی 18 سال کا کڑیا جوان 57 سال کے بڑھاپے سے اجازت مانگ رہا ہے. آقا حسین بن علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن مسئلہ کے وقت کا تقاضا یہ تھا، جب اجازت دی آقا حسین نے تو ایک جملہ کہا، بیٹا اکبر جب تک جنگ سے اڑا پیچھے مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے جناب علی اکبر کا گھوڑا رفتار پکڑتا جاتا تھا، 57 سال کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر 18 سال کے کڑیا جوان نے یہ سوچا لاؤ رفتار کم کر کے اپنے باپ کو چہرہ دکھا دیا جائے. تاریخ کہتی ہے اب تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، 57 سال کا بڑھاپا کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. جناب علی اکبر بڑے غیرت مند تھے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں بابا بابا میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بوڑھا باپ میرے پیچھے پیچھے چلے، بابا آپ میرے پیچھے نہ آئیے. ایک جملہ کہا، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوگا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے. ہائے کربلا کا یہ دل ٹکڑے کرنے والا مقام. جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی. یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین کا لاڈلا 18 سال کا نوجوان ہم شکل پیغمبر لڑتے لڑتے اچانک ایک پرچھی سینے پہ آ کر ایسی لگی، علی اکبر زمین پہ آ گئے. اب تو ظالم نے پوری طاقت سے پرچھی مار کے کھینچی تو عالم یہ تھا کہ پرچھی کا پھل شہزادے کے کلیجے میں رہ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. عربیہ بیضا سینے میں پرچھی کی پھل رہ گئی. جب پرچھی کا پھل سینے میں اتر گیا اب جوان ایڑیاں رگڑتا ہے، بابا بابا میری مدد کو آئیے. آج 57 سال کا بڑھاپا. آقا حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. آئے باپ جو ہے اپنے بیٹے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا، 57 سال کا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ہائے بوڑھا باپ 18 سال کا جوان بیٹا. اللہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے. جیسے ہی باپ قریب پہنچا بیٹے نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بابا میرا سلام قبول کرو بابا. ایک ہاتھ کلیجے میں رکھا ہے. آقا حسین نے کہا بیٹا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بابا ظالم نے پرچھی ماری ہے. ارے کلیجے کے اندر علی رہ گئی، پھل رہ گیا اندر. بیٹا کس نے پرچھی ماری؟ کہ حسین ابن نبیر نے ماری ہے. سننا مسائل ختم ہو رہے ہیں. آقا حسین نے آہستہ سے کہا بیٹا نکالی کیوں نہیں؟ کہا جب آپ نہیں آئے تھے نا تو یہ ظالم آپس میں باتیں کر رہے تھے. سنائے حسین بڑا صابر ہے، حسین بڑا صابر ہے. آج اگر جوان کے سینے سے پرچھی نکال لے گا تو ہم مان لیں گے حسین بڑا صابر ہے. اتنا سنا نبی کے نواسے نے آستینیں الٹی اور الٹنے کے بعد کہا بیٹا اکبر پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کربلا کا ریتیلا میدان، سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، ترے خیمہ پر بہن کھڑی ہے. حسین نے اکبر سے کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ آواز آئی بابا جیسے تمہارا دل چاہے. ارے پرچھی کی علی نکال لو، میں اس تک نہ کروں گا. ہائے حسین بیٹھے، آستینیں چڑھائی، سر سانپ میں رکھا، دایاں ہاتھ اکبر
अकबर के कलेजे में रखा और रखने के बाद एक हाथ अकबर के सीने के जख्म में डाला, इसलिए कि यानी आज सीने के अंदर है, और डालने के बाद पर्ची के फल को पकड़ा, पकड़ने के बाद जैसे ही बाप ने पर्ची का फल हिलाया, दर्द इतना था अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना था, जमीने करबला हिलने लगी। अरे खैमे में ज़ैनब तड़प गई, ए अम्मा फिजा ये जमीने करबला क्यों लरज रही है? आवाज आई शहजादी अपने आप को संभालो, आका हुसैन जवान के सीने से पर्ची का फल निकाल। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू रज़ा मिन अबज़ाइ तस्लीमा अमरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा